अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी सैयदा हमना शौकत. दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल. और इधर आपको 9 मैट्रिक मैथमेटिक्स के सॉल्यूशंस मिलेंगे ऑफ बुक 9 मैट्रिक प्लस फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर एंड ऑक्सफोर्ड बुक D1 एंड D2. मैं डिफरेंट क्लासेस के बुक्स के अकॉर्डिंग प्लेलिस्ट बना दूंगी जिसके अंदर मैं सारे एक्सरसाइजेस जो है वो सॉल्व करके उसके अंदर अपलोड करती जाऊंगी वन बाय वन. लाइक क्लास 9 के अगर मैं एक चैप्टर सॉल्व करना स्टार्ट करी हूँ तो क्लास 9 की प्लेलिस्ट में मैं एक चैप्टर सॉल्व कर दूंगी. इस तरीके से फिर जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैं जो है वो मैट्रिक की प्लेलिस्ट में एक चैप्टर ऐड कर दूंगी एंड देन फर्स्ट ईयर की देन सेकेंड ईयर की, इसी तरीके से सो ऑन. सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो or if you like my way of explanation, so kindly share it with all to help other and subscribe my channel to support me. Now today मैं जो है वो बुक क्लास 9 की बुक चैप्टर 1 से स्टार्ट करी हूँ एंड द चैप्टर 1 इज रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर. To start the chapter, we need to know what is real number and what is complex number. So real number is union of rational and irrational number. Now union of rational and irrational number what means? Real number include rational or irrational number. Now what is rational or irrational number? So rational number is number that can be expressed as ratio of two numbers. Is rational number means दो numbers का ratio को हम कहते हैं एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ रेशियो. वो दो नंबर जो कि रेशियो फॉर्म में एक्सप्रेस किए गए हों दैट इज कॉल्ड रैशनल नंबर. और इररेशनल नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज रेशियो ऑफ टू नंबर्स. लाइक इफ वी हैव it's 5/4. This is rational number and because this is the ratio of two number 5 and 4, this is the ratio of 5 and 4, so this is rational number. And like if we have 8/3, it's also the ratio of two number which is 8 and 3. But irrational number cannot be expressed as ratio of two numbers. 4 is also a rational number because every number has its own denominator which is 1 जो कि हम represent नहीं करते. So 4 is also a rational number, 10 is also a rational number, 8 is also a rational number, right? Irrational number cannot be expressed as the ratio of two numbers. Like irrational number को हम represent करते हैं in the form of decimals. Second point is, अच्छा मैं ये rational और irrational number की इतनी explanation इसलिए दे रही हूँ because they want to know about and they ask about the rational and irrational number in the question number 1 of exercise 1.1. So rational number is decimal expansion of rational number is terminating. Decimal expansion of rational number is terminating means what is terminating? Terminating is the number like if we have two numbers ratio like 1/2. 1/2 को अगर मैं डिवाइड करूंगी so its answer is 0.5 which is terminating decimal number. Terminating decimal number is non-repeating decimal number. Like अगर मैं डिवाइड करूँ 1/2 को तो मेरे पास आंसर आएगा 0.5. बट अगर मैं डिवाइड करूँ 1/3 को तो मेरे पास आंसर आएगा 0.3333 एंड सो ऑन विच इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर. So non-terminating decimal expansion of irrational number is non-terminating means irrational number की decimal expansion जो होगी वो non-terminating होगी अगर हमारे पास दो numbers का ratio होगा और उसको after solution decimal हम अगर करेंगे तो उसकी जो decimal number होगा वो non-terminating होगा. It means that is irrational number और अगर वो terminating होगा that is rational number. Next is rational number include perfect square like under root 16 perfect square of 4. 4 is root 4 is 2 as we all know, but under root 3 is not a perfect square, so it is irrational number because it includes surds. Surds means square root. Now what is complex number? Complex number, a number the combination of real and imaginary number is
कॉम्प्लेक्स नंबर. नाउ व्हाट इज रियल नंबर एंड व्हाट इज इमेजिनरी नंबर. रियल नंबर मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ व्हाट इज रियल नंबर. इमेजिनरी नंबर इज a number with iota. A number with iota. What is iota? Iota फिलहाल तो आपकी बुक या आपके चैप्टर के अंदर इतना इंक्लूडेड नहीं है. लाइक क्या है इस चीज़ की भी एक्सप्लेनेशन की आपके कोर्स में फॉर क्लास 9 नीड नहीं है, बट मैं फिर भी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. जब भी हमारे पास अंडर रूट के अंदर माइनस साइन आ जाती है, सो वहाँ पे हम जो है वो आयोटा पुट करते हैं ना. कॉम्प्लेक्स नंबर इज रिप्रेजेंटेड विद z एंड उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं a प्लस आयोटा b. Here a is real number and b is imaginary number. As I said, a number with iota is imaginary number. That's it. This is complex number. इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन की फिलहाल इस चैप्टर के अंदर और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नीड नहीं है. नाउ वी मूव to exercise 1.1 of question number 1. In question number 1, they ask identify the given numbers is a rational number or irrational number. So in part 1 we have 1 upon 5. 1 upon 5 is rational number or irrational number. As we already discussed that a rational number is the ratio of two numbers. Here 1 and 5 are the two numbers and 1 and 5 are the 1 upon 5 is the ratio of two numbers. So this is rational number. In part 2 we have under root 2 upon 18. Under root 2 upon 18 is rational number or irrational number. Root 2 is not a perfect square. So this is not a rational number because of root 2. क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं रूट 2 इज सर्ड एंड सर्ड इज irrational number. So this is irrational number. 5 upon root 6. Root 6 is also a surd. This is not a perfect square. So this is also a irrational number because of root 6. And again 2 upon 8. 2 upon 8 is rational number or irrational number. अगर मैं 2 upon 8 को डिवाइड करना चाहूँ, so 8 here, 2 here, पॉइंट लगा के डेसिमल ले लूँगी, सॉरी डेसिमल लगा के 0 ले लूँगी अगर तो मैं. सो 8 4 ज़ा 16 माइनस किया, रिमेनिंग 4 हेयर और जो है वो अगेन पॉइंट लिया हुआ मैं 3 जीरोस ले सकती हूँ. सो 8 5 ज़ा 40. आफ्टर सोल्यूशन इसका आंसर है 0.45. इट मीन्स दिस इज टर्मिनेटिंग एंड दिस इज ऑल्सो अ रेशियो ऑफ टू नंबर. सो दिस इज रेशनल नंबर, राइट. नेक्स्ट पार्ट में मेरे पास है 1 upon root 3. Also here root 3 is also a surd. This is not a perfect square. So this is also a irrational number because of root 3. In part 6 root 8. Root 8 is also a surd. This is not a perfect square. So this is also a irrational number. 0. 0 is a whole number. एंड इट इज़ ऑल्सो अ रेशियो ऑफ टू नंबर्स. क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास हर नंबर का एक डिनोमिनेटर होता है विच इज़ 1. सो दिस इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर. पाई इन पार्ट 8 पाई की हमारे पास एक वैल्यू होती है, एक कांस्टेंट टर्म है ये, और इसकी वैल्यू होती है समथिंग 3.142 एंड सो ऑन. दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर. So this is irrational number because of non-terminating decimal number. Root 5 is also a surd. This is not a perfect square. So this is also irrational number. क्योंकि हम already डिस्कस कर चुके हैं कि perfect square जो है वो हमारे पास irrational number होता है, और वो नंबर जिसमें surd include हो means under root form में include हो, that is called irrational number. Again 22/3. 22/3 को अगर मैं डिवाइड करती हूँ, 22 हेयर 3 हेयर, 3 7 से 21,
अगेन पॉइंट लिया, 1 इज हेयर, 1 का पॉइंट लिया, 0 आया, 3 3 ज़ा 9, अगेन 1 पॉइंट के बाद 0, 3 3 ज़ा 9, अगेन 1 पॉइंट लिया हुआ 0, 3 3 ज़ा 9, अगेन 1 0, 3 3 ज़ा 9। अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करती जाऊंगी तो ये मेरे पास फर्दर सॉल्व होता जाएगा और मेरे पास यहाँ 3 3 3 3 3 आता जाएगा। अगर इसका सोल्यूशन मैंने लिखा तो इसका सोल्यूशन मेरे पास क्या आया, 7.3333 एंड सो ऑन। दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। सो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हमारे पास कौन सा नंबर होता है, दिस इज इर्रेशनल नंबर। 1/pi, पार्ट 11 इज 1/pi। पाई इज इरेशनल नंबर। अगर वो मेरे पास न्यूमिनेटर में आए या नॉन डिनोमिनेटर में आए, वो मेरे पास नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, तो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर की वजह से मेरे पास ये भी इरेशनल नंबर ही होगा। नाउ वी हैव 11/12। 11/12 को अगर मैं सिंप्लीफाई करती हूँ, सो हेयर 11 एंड 12 हेयर, सो 12 पॉइंट लगा के मैं 0 लूँगी क्योंकि 12 जो है वो 11 से बड़ा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 110 एंड 12 9 इज 10। 8 माइनस किया, यहाँ से 1 कैरी लिया क्योंकि 0 में से 8 हमारे पास सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। दिस इज 0, दिस इज 10, 10 माइनस 8 इज 2, 0 माइनस 0 नथिंग, 1 माइनस 1 इज नथिंग, पॉइंट लिया हुआ है, 0 अगेन ले लिया, 12 1 ज़ा 12 हेयर। सो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा, अगेन बोरो लूँगी बिकॉज 0 is less than 2. This is 10, this is 1. 10 minus 2 is 8. 1 minus 1 is nothing. Point लिया हुआ है 0. 12 6 are 72. 72 again. This is 7. This is 10. 10 minus 2 is 8. 7 minus 7 is nothing. Again point लिया हुआ है 0. 7 6 are, sorry, 12 7 6 are 72. Again we have 8 here. Point लिया हुआ है 0. अगेन वही फर्दर हमारे पास 6 6 6 6 6 ही आ रहा है। दिस इज ऑल्सो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। मेरे पास इसका आंसर आया 0.9166 एंड सो ऑन। दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, सो दिस इज irrational number. In question number 2, they ask about convert into decimals and also indicate them as a terminating and non-terminating number. Means हमने इसको डेसिमल, ये फ्रैक्शन नंबर है, मैं हमने इसको डेसिमल नंबर में चेंज करना है, जैसे कि हम ऑलरेडी एक सवाल सॉल्व कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, फ्रैक्शन को हम डेसिमल फॉर्म में कैसे सॉल्व करते हैं, बाय डिवाइडिंग दैम। और जो है वो अब हमने क्या करना है कि आफ्टर सोल्यूशन हमने ये बताना है कि दिस नंबर इज टर्मिनेटिंग नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। सिर्फ इधर मैं आपको सिर्फ एक ही पार्ट सॉल्व करके दिखाऊंगी, बाकी पार्ट्स की नीड नहीं होगी सोल्यूशन की, तो आप आई थिंक खुद भी कर सकते हैं क्योंकि हम ये लोग ये चीज़ें शायद बचपन से ही करते आ रहे हैं, सो इतनी ज़्यादा नीड नहीं होगी। तो मैं यहाँ पे सिर्फ पार्ट 1 का ही एक सोल्यूशन सॉल्व कर रही हूँ। 5/8, सो 5 इज हेयर, 8 इज हेयर। अगेन पॉइंट लगा के मैं 0 लूँगी बिकॉज 5 इज लेस देन 8। 8 5 ज़ा 40 एंड 8 6 ज़ा 48, 8 6 ज़ा 48। अगेन मेरे पास 2 यहाँ पे रिमेनिंग बचेगा, पॉइंट से पहले मैं 0 लगा दूंगी, 0 है, 0 पॉइंट की वजह से मैं यहाँ अगेन एक 0 पुट कर दूंगी। 8 16, 8 2 ज़ा 16। अगेन मेरे पास 4 आएगा, पॉइंट की वजह से मैं 0 लगा दूंगी। 8 5 ज़ा 40। मेरे पास इसका सोल्यूशन क्या आया, 0.625। सो व्हाट इज दिस, दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, दैट्स इट। इस क्वेश्चन के अंदर हमने सारे पार्ट्स के साथ सिर्फ और सिर्फ यही करना है। इसको हमने क्या करना है, सबसे पहले कन्वर्ट दिस फ्रैक्शन इनटू डेसिमल नंबर एंड आफ्टर कन्वर्जन हमने बताना है कि दिस फ्रैक्शन इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, जो कि हमें पता चल जाएगा। अगर इसके फर्दर नंबर आ रहे होंगे तो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग, बट यहाँ पे ये टर्मिनेट हो चुका है, सो दिस इज टर्मिनेटिंग, हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 3, they ask represent the given rational number on number line. Rational number on number line. Before started this, I want to discuss about something because we customize our number line according to the given question. In part 1 we have 8/10. अगर मैं 8/10 की बात करूं, like as we all know 10/10 is equal to 1 because they cancel each other. इसकी नंबर लाइन कुछ इस तरीके से स्टार्ट होगी, मिड में हमारे पास 0 होता है, हमें पता है। इस तरफ हमारे पास पॉजिटिव नंबर जाते हैं, इस तरफ हमारे पास नेगेटिव नंबर जाते हैं। दिस इज 0। अगर मैं इसके नेक्स्ट नंबर को 0/10
1/8 कह दूं तो कोई मसला है, क्योंकि ये 0 है। 0 को अगर मैं 0/8 कह दूं तो दिस इज इक्वल टू 0 ही, ये 0 के बराबर है। नेक्स्ट नंबर अगर मैं 1/8 कह दूं, उसके बाद मैं सॉरी 10 बिकॉज डिनोमिनेटर में हमारे पास 10 है यहाँ पे। 0/10 इज इक्वल टू 0, 1/10 नेक्स्ट नंबर को मैं कह दूं, नेक्स्ट पॉइंट को मैं कह दूं, नेक्स्ट उससे नेक्स्ट मेरे पास होगा 2/10, देन वी हैव 3/10, देन 4/10, देन 5/10, दिस इज 5/10, 1/10, 0/10, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, this is 8/10, 9/10, and this is 9/10 and 10/10, which is equal to 1, जो कि हमारे पास बराबर है 1 के। तो हमें उन्होंने नंबर दिया 8/10 का, तो हमारे पास जो पॉइंट होगा वो कुछ इधर लगेगा, क्योंकि पॉजिटिव 8/10 की बात की थी तो मैं पॉजिटिव पे लगाऊंगी, और इसी तरीके से मेरे पास नेगेटिव 8/10 की बात की जाएगी। अगर मैंने कहा दिस इज 0/8, दिस इज 1/8, इट मींस दिस इज -1/8, दिस इज -1/8, दिस इज -1/28, दिस इज -10, this is -3/10, this is -4/10, this is -5/10, this is 6, 7, -8/10। तो इसकी नंबर लाइन कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट होगी। 3 में हमारे पास नंबर है होल नंबर के अंदर, विच इज 1 होल नंबर 1/2। आप चाहो तो इसको सॉल्व करके भी सॉल्व कर सकते हो। लाइक अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करना चाहूँ तो ये मेरे पास बनेगा 1 होल नंबर 1/4 इज इक्वल टू 4 1 4, सो दिस इज इक्वल टू 5/4। अब आप चाहो तो इसको 5/4 के अकॉर्डिंग इसकी नंबर लाइन कस्टमाइज कर सकते हो, बट मैं इसको होल नंबर के ही अकॉर्डिंग सॉल्व करना चाहूंगी, तो मैं इसकी नंबर लाइन होल नंबर के अकॉर्डिंग ही बना रही हूँ। मिड पॉइंट में मेरे पास अगेन 0 होगा, इसके राइट हैंड साइड पे मैं पॉजिटिव नंबर की तरफ जाऊंगी और लेफ्ट हैंड साइड पे मैं नेगेटिव नंबर की तरफ जाऊंगी। मेरे पास 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे बनेगा, क्योंकि मेरे पास डिनोमिनेटर में 4 है तो यहाँ पे मैं 4 यूज करूंगी। यहाँ पे मेरे पास डिनोमिनेटर में 10 था तो मैंने अपॉन में 10 यूज किया था, बट यहाँ पे क्योंकि डिनोमिनेटर में 4 है तो मैं डिनोमिनेटर में 4 यूज करूंगी। तो फर्स्ट 0 के बाद मेरे पास राइट हैंड साइड पे आएगा 1/4, नेक्स्ट इज 2/4, then again next is 3/4 and again 4/4, which is equal to 1, right? 1 के बाद मेरे पास जो नेक्स्ट नंबर होगा वो कुछ इस तरीके से होगा 1 होल नंबर 1/4, क्योंकि जब मैंने इसको सॉल्व किया था तो मेरे पास आंसर आया था 5/4। अकॉर्डिंग टू दिस ये मेरे पास 5/4 ही बन रहा है। 4/4 के बाद मेरे पास आएगा 5/4 ही। तो चाहे तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो कि फ्रैक्शन होल नंबर को सॉल्व कर लो, चाहे तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। मैंने इसको इस तरीके से सॉल्व करना चाहा तो मैंने यहाँ 1 होल नंबर 1/4, नेक्स्ट मैंने लिखा 1 होल नंबर 2/4, देन अगेन मैंने नेक्स्ट लिखा 1 होल नंबर 3/4। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास इससे नेक्स्ट नंबर ही बन रहे होंगे। लाइक अगर मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखाऊं 1 होल नंबर 2/4 इज इक्वल टू 4 1 4 एंड 4 प्लस इज 6/4। सो 5/4 के बाद मेरे पास आएगा 6/4, तो नेक्स्ट नंबर मेरे पास 6/4 ही बन रहा है अगर मैं इसको होल नंबर में सॉल्व ना करना चाहूँ तो। मेरे पास यहाँ पे नंबर है 1 होल नंबर 1/4, तो कुछ नंबर लाइन का पॉइंट मेरे पास यहाँ बनेगा। और नेक्स्ट मेरे पास फोर्थ पार्ट में है मेरे पास 1 होल नंबर -1 होल नंबर 1/4, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, बिकॉज राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव नंबर जाते हैं और लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव नंबर जाते हैं। जिस तरीके से मैंने 0 के फौरन बाद राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव 1/4 लिया, इसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड पे -1/4, -2/4, -3/4, -4/4, विच इज इक्वल टू -1। फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट भी सेम है, जो कि है मेरे पास 2/3 एंड -2/3। सो आप लोग ट्राई कीजिएगा इसको खुद से सॉल्व करने की। अगर फिर भी कोई इशू आएगा मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं जरूर सॉल्व करके आपको दूंगी। मैं चाहती हूँ कि आप लोग खुद करें ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि आप लोग को कुछ समझ आया। क्वेश्चन नंबर 3, वी हैव क्वेश्चन नंबर 4, which is can you make a list of all real number between 1 and 2? No, we cannot, because between 1 and 2 we have so many numbers like 1.000000001, 1.0000 अगेन, मतलब हमारे पास बहुत सारे नंबर आ जाते हैं अगर हम डेसिमल पॉइंट्स की बात करें। और इन बिटवीन 1 and 2 रियल नंबर्स, क्योंकि हमारे पास पॉइंट में भी आते हैं,
रियल नंबर्स में हमारे पास इंटीजर्स रैशनल और इरेशनल नंबर दोनों हो जाते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे पॉइंट से भी नंबर आ जाते हैं। तो 1 के बाद मेरे पास कोई भी नंबर आ सकता है, लाइक 0, 1.0000001, बिकॉज रियल नंबर के अंदर हमारे पास टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग दोनों नंबर्स हो सकते हैं। सो वी कैन नॉट मेक अ लिस्ट ऑफ रियल नंबर, ऑल रियल नंबर बिटवीन 1 and 2। नेक्स्ट है हमारे पास गिव रीजन वाई पाई इज एन इरेशनल नंबर, बिकॉज मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था कि पाई इज अ कांस्टेंट नंबर एंड इट्स वैल्यू इज 3.142 एंड सो ऑन। 3.142 and so on, the value of pi. This is non-terminating number, so this is irrational number. यही इसका रीजन होगा। नेक्स्ट है हमारे पास इन क्वेश्चन नंबर 6, टिक द करेक्ट स्टेटमेंट। So statement 1 is 5/7. 5/7 is an example of irrational number. So is it right or wrong? 5/7 को अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ, so 5/7 is 5 here, 7 here. So this is पॉइंट लगाया मैंने, इधर 0 आ गया, तो 7 7 7 49। 49 अगेन मेरे पास यहाँ पे 1 बचेगा, पॉइंट लगा के मैं 0 ले सकती हूँ। 7 1 7, यहाँ पे मेरे पास आएगा 3, पॉइंट लगा के मैंने 0 ले सकती हूँ। 7 3 21, 7 4 28, अगेन मेरे पास यहाँ 2 बच जाएगा, पॉइंट लगा के मैं 0 ले सकती हूँ। 7 2 14, अगेन 7 2 14, रिमेनिंग इज 4 here, 6 here, पॉइंट लगा के अगेन मैं 0 ले सकती हूँ। 7 8 56। मेरे पास यहाँ पे ये चलता तो जा रहा है डिवीजन, बट क्योंकि रिपीटिंग नंबर नहीं आ रहा मेरे पास, सो दिस इज नॉट अ टर्मिनेटिंग नंबर, सो दिस इज नॉट अ इरेशनल नंबर। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट टाइम अगर मेरे पास यहाँ पे रिपीटिंग नंबर आता, लाइक 777 या 444 या 222 या फॉर एग्जाम्पल 888 भी आता जाता, तो मैं इसको बोलती कि दिस इज टर्मिनेटिंग नंबर। बट क्योंकि यहाँ पे मेरे पास नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, बट क्योंकि यहाँ पे मेरे पास नंबर चेंज होते जा रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे इसको अगेन सॉल्व करती हूँ तो मेरे पास यहाँ पे अगेन 40 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ मैं 0 लूंगी। 7 5 35, अगेन मैं इसको सॉल्व करूंगी तो मेरे पास यहाँ 50 बचेगा, फिर पॉइंट लगा के अगेन। बट यहाँ पे क्योंकि मेरे पास रिपीटिंग नंबर नहीं आ रहा, तो इस वजह से मेरे पास ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स होगी, ये नंबर इरेशनल नहीं होगा। नेक्स्ट मेरे पास है पाई। पाई इज एन इरेशनल नंबर, दिस इज ट्रू, क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि पाई की वैल्यू है 3.1428 एंड सो ऑन। दिस इज नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, सो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर की वजह से ये होगा आपके पास इरेशनल नंबर। नेक्स्ट है मेरे पास 0.31591 एंड सो ऑन इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग नंबर और नॉन रिकरिंग नंबर डेसिमल फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग इज बोथ आर सेम, सो यहाँ पे दिस इज ऑल्सो ट्रू, क्योंकि अगेन आप देख सकते हैं कि ये नंबर कंटिन्यू है। सॉरी दिस इज नॉट टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये नंबर चेंज हो रहे हैं, रिपीटिंग नंबर नहीं, तो दिस इज फॉल्स, राइट। नेक्स्ट है मेरे पास 0.123 इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिकरिंग डेसिमल नंबर, सो दिस इज राइट, क्योंकि ये नंबर कंटिन्यू नहीं है और रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो दिस इज रिकरिंग डेसिमल नंबर। अगेन 1/3 एंड 1/3 and 2/3 are lying between 0 and 1. Is it true or false? This is true, because 1/3 and 2/3 is lie between 0 and 1. 0/3, 1/3, 2/3 and 3/3, which is equal to 1. So देखें 1/3 and 2/3 is lie between 0 and 1. First one is true, first one is false, second one is true, third one is again false, fourth is true, fifth is true, and sixth is 1/√3 is an example of rational number, false, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास √3 आ गया। दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, दिस इज सर्ड, सो दिस की वजह से मेरे पास ये है
इरेशनल नंबर और यहाँ पे उन्होंने रेशनल नंबर किया हुआ है, तो दिस इज फॉल्स। दैट्स इट। इधर हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं 1.2, 1.3, 1.4 इस तरीके से मैं सॉल्व करके आपको एक प्लेलिस्ट बना के मैं इसमें ऐड करती जाऊँगी, चैप्टर वाइज, इवन क्लासेस वाइज। If you like my video and if you like my way of explanation, kindly share my video to others. That's it. Thank you so much. Allah Hafiz.